Hello, good morning students. How are you? Did you read the chapter? Chapter number 18, which is about coming of the British. Yes, and I know many of you have seen some YouTube videos as well. Acha hai na? Interesting. So now you are getting to know that from where the British come, who was the first person who discovered the sea route to India, and then we have studied further about what British have started done, how they have made a treaty with the Jahangir, and now they have started violating the rules and regulations, and moreover they have killed the Nawab of Bengal, which is Siraj Uddola, है ना? This all we have read in our yesterday's class and Zoom sessions also. So अब जब बंगाल के नवाब को ब्रिटिश ने मार दिया है, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या हुआ? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासे, है ना, पढ़ा था ना हमने, बैटल ऑफ प्लासे विच हैपेंड इन बंगाल. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? सो today myself Mitali, your social science teacher, and we are going to do the chapter further from page number 103. I am continuing the second paragraph on the top. In 1764, when was the battle of Plassey happened? It happened in 1757. अब मैं कौन सी ईयर की बात कर रही हूँ? I'm talking about 1764. In 1764, the East India Company started another war, एक और युद्ध, against the combined army of Nawab of Bengal. देखना किस किस के अगेंस्ट में ब्रिटिश ने लड़ाई बोल दी है. बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला, तो इट वाज किल्ड ना, उनके अलावा और जो थे वो, एंड अवध इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एंड द मुगल एम्पेरियर शाह आलम एट बक्सर. बक्सर इज द नेम ऑफ अ प्लेस जहां पर वो लड़ाई हुई थी. So because that battle, that war happened in Buxar, so the name of that battle is Battle of Buxar. So this came to be known as Battle of Buxar. So that battle was known as Battle of Buxar. They won the war. कौन जीत गया इस लड़ाई को? Of course, the British won the war and obtained the right to collect revenues in Bengal. Revenues होता है एक इनकम, उनको एक परमिशन मिल गई क्योंकि अब उनके अंडर आ गया, पूरा का पूरा बंगाल उनके अंडर आ गया. सो नाउ दे हैव गॉट द परमिशन कि अब वो वहां के लोगों से रिवेन्यू, जिसको हिंदी में हमने वो मूवी देखी है ना, लगान, है ना, तो लगान इज टैक्सेस बट रेवेन्यू इज सम सॉर्ट ऑफ इनकम ओनली, कि उनको एक परमिशन मिल गई कि नाउ दे कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम द बंगाल पीपल. This made the East India Company very powerful as Bengal was under their control. अब पूरा का पूरा बंगाल क्या हुआ? उनके अंडर आ गया. So of course the British company, the East India Company became more powerful. The British realized that there were many big and small kingdom. अब मैंने बताया स्टार्टिंग में कि क्या था यहाँ पर पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे. बड़ा राजा छोटा राजा आपस में उन्होंने फाइट करी, एक जीत गया एक हार गया. जो हार गया उसका एरिया दूसरे के अंडर चला जाता था, यही होता था ना. तो अब क्या देखा? अब अंग्रेजों ने, द ब्रिटिशर्स ने भी यही देखा that the same thing is happening. The Britishers realized that there were many big and small kingdoms in the country which fought against each other, जो एक दूसरे से ही लड़ाई कर रहे हैं. They took advantage. उनको लगा क्यों ना हम फायदा, advantage means फायदा, क्यों ना हम फायदा उठाएं इस सिचुएशन का, and introduced the policies of doctrine of lapse and subsidiary alliance. तो अब this is very important for you बेटा. These two names which are written with bold are very very important. Subsidiary alliance होती, subsidiary alliance. ब्लू कलर में लिखा है नीचे. This policy was introduced by Lord Wesley, who was the Governor General of India in 1789 to 1805, right? According to this policy, अब किसने इंट्रोड्यूस करी, कब इंट्रोड्यूस करी, this you need to learn. But
What was the policy? According to this policy, see, the Indian rulers had to give up their armies, and in return the British would protect them from foreign attacks. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि तुम अपनी आर्मी हमारे अंडर सरेंडर कर दो, अपनी आर्मी आप हमको दे दो, बदले में हम क्या करेंगे? बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम दी अटैक, कि कोई और आपके ऊपर जब अटैक करेगा तो हम लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे। सो ये एक रूल उन्होंने इम्पोज कर दिया। अब क्या हुआ? सपोज आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूं, मुझे उन्होंने बोला कि तुम मुझे मेरी अपनी आर्मी दे दो, अगर कोई और राजा तुम पे अटैक करेगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हम तुम्हारे प्रोटेक्शन करेंगे, उस राजा को जीतने नहीं देंगे। सो व्हाट आई विल डू? ऑफ कोर्स आई विल सरेंडर टू देम। जो सबसे जो सेकंड जो थी, जो जिसकी वजह से इंडिया का बहुत बड़ा लॉस हुआ, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? ये पॉलिसी क्या थी? देखो, वही द पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 to 1856. This you need to learn now. According to this policy, इस policy के अंदर if an Indian ruler died, अगर एक इंडियन रूलर, सपोज आई एम अ किंग, मैं राजा हूं, मैं अपने एरिया का रूलर हूं, died without an hire. What is the meaning of hire? hire को हिंदी में बोलते हैं वारिस। वारिस, सपोज मैं राजा हूं और मेरा कोई भी बेटा नहीं है, मैं राजा हूं और मेरा कोई भी बेटा नहीं है, तो क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में ब्रिटिशर्स ने एक रूल अप्लाई कर दिया दैट द किंगडम वुड कम अंडर द ब्रिटिश। आइडली क्या होता था कि जो भी नेक्स्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, लोगों का वोट लिया या लोगों का एक डिसीजन लेकर एक पर्सन को किंग रूलर बना देते थे। बट ब्रिटिशर्स ने एक रूल बना दिया कि इफ द रूलर ऑफ द प्लेस डाई, जिसका कोई सन नहीं है, विदाउट एनी हायर, तो उस केस में क्या होगा? दैट द कंप्लीट एरिया विल कम अंडर द ब्रिटिश। दिस पॉलिसी डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड सन्स एट हायर्स। इस पॉलिसी ने ये भी मना कर दिया कि अगर आपने किसी का बेटा अडॉप्ट किया है वो भी नहीं अप्लाई होगा, यानी कि अगर अपना सन है देन ओनली दैट किंगडम कैन बी ट्रांसफर्ड, अदरवाइज द किंगडम cannot be transferred, and that kingdom, complete kingdom of that particular ruler will come under the British. So they gradually extended their power to the other part of India. Gradually means धीरे धीरे उन्होंने जो अपनी पावर्स थी उसको इंडिया के दूसरे जगहों पर भी फैलाना स्टार्ट कर दिया, वही उसको उनको अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया। However, there were a few powerful kingdoms who did not give in to the demands of the British. कुछ ही, however, जबकि कुछ ही ऐसे राजा थे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने अपने आप को ब्रिटिश के अंडर आने से मना कर दिया। The British fought many wars against these kingdoms. ब्रिटिश ने क्या किया? आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि आप मेरे अंडर सरेंडर करो, मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने क्या किया? युद्ध कर दिया मेरे अगेंस्ट में, एंड अल्टीमेटली डिफीटेड देम। और क्या हुआ? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दे वर रिच, दे हैड मॉडर्न वेपन्स, दे हैड गुड टेक्नोलॉजी, सो with the help of that particular things they of course won the wars. तो अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे जिन राजाओं ने खुद से सरेंडर कर दिया, दैट्स फाइन, नहीं किया तो युद्ध लड़के जीत के उस एरिया को अपने अंडर कर लिया। बाय 1850, अब 1850 तक पहुंच गए हैं। हमने ये स्टोरी जो थी, वी स्टार्टेड फ्रॉम 1600, राइट? Ideally, though, we started from 1498 when the Vasco da Gama discovered the sea route. But the Britishers, they established East India Company in 1600, right? So now we are talking about 1850, यानी 250 साल की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, 250 years. Now it's been 250 years that Britishers are here in India. What they have done is, by 1850, they had established their rule in most part of द इंडिया। बाय 1850 उन्होंने क्या किया कि
इंडिया का बहुत ज्यादा पार्ट ऑलमोस्ट पूरा इंडिया उन्होंने अपने अंडर कर लिया एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। और उन्होंने क्या क्या किया कल पढ़ेंगे। बाय।